ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਾਨ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਹੈਵਾਨ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਝਾੜੀਆਂ ਪੀੜ ਤਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਕੂਟੀ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾ ਦਬਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕੂ ਪੇਚਕਸ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਂਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਬੇहद ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਉਸਦਾ ਜੇਠ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ NGO ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗਲਾ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਮਰਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। जब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष हो, पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी। हमने हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया। हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाव से मना रही है, जी जान से मना रही है। आप देखिए कितने बड़े गर्व की बात होती है जब हमारे काढ़े, हमारे मसालों, हमारे आयुष के समाधानों की चर्चा करते हैं। इससे पहले जो कभी हिचकते थे वो आज गर्व के साथ एक दूसरे को कहते हैं ये लीजिए।
आजकल हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि कोरोना के बाद दुनिया को लगा है भारत के पास तो बहुत कुछ है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन का लोहा मानने लगी है। हमारे यहां खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी, जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। जब पिछली बार मैं कर्नाटका का मेरा प्रवास था तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने मोटे अनाज का एक बहुत बड़ा शो रखा था और इतने प्रकार के मोटे अनाज जो छोटे छोटे किसान पैदा कर, उसकी इतनी पौष्टिकता है, बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया था। लेकिन हम जानते हैं इन पौष्टिक अनाजों को देश में उतना प्रोत्साहन नहीं किया गया। एक प्रकार से ये तो गरीबों कहाँ है, ये तो जिसके पास पैसे नहीं वो खाता, ये मानसिकता बन गई थी। लेकिन आज अचानक स्थिति बदल गई है और स्थिति बदलने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है। धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि एक मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है। 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि मोटा अनाज वहीं पैदा होता है, वही लोग मेहनत करके निकालते हैं। साथियों, बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। जरूरी दवाओं को, चाहे हार्ट स्टेंट शो की बात हो, नी सर्जरी से जुड़े उपकरणों की बात हो, उस कीमतों को कई गुना कम कर दिया गया है। इससे लोगों को सालाना करीब 12,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। आयुष्मान योजना से देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके हैं। अनुमान है कि इससे भी लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी जन औषधि, आयुष्मान, स्टेंट और अन्य उपकरणों की कीमत घटने से हो रही बचत को अगर हम जोड़ें, सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों की मैं बात कर रहा हूं, तो आज मध्यम वर्ग का, सामान्य परिवार का करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बच रहा है। साथियों, भारत दुनिया की फार्मेसी है, ये सिद्ध हो चुका है। दुनिया हमारी जेनरिक दवाएं लेती है, लेकिन हमारे यहां ही उनको एक प्रकार से उदासीनता रही, प्रोत्साहित नहीं किया गया। अब हमने उस पर बल दिया है। हमने जेनरिक दवाओं पर जितना जोर लगा सकते हैं लगा, ताकि सामान्य मानवी का पैसा बचना चाहिए और बीमारी भी जानी चाहिए। कोरोना काल में दुनिया ने भी भारत की दवाओं की शक्ति को अनुभव किया है। यही स्थिति हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री की थी। भारत के पास अनेक बीमारियों की वैक्सीन बनाने की क्षमता थी, लेकिन जरूरी प्रोत्साहन की कमी थी। हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया और आज भारत में बने टीके हमारे बच्चों को बचाने के काम आ रहे हैं। साथियों, देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है। हमारी सरकार ने यहां भी देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में
दुनिया में सबसे सस्ता यानी सिर्फ 250 रुपये का टीका लगाया जा रहा है। हर दिन लाखों साथियों को भारत का अपना टीका लग रहा है। नंबर आने पर मैं भी अपनी पहली डोज लगवा चुका हूं। साथियों, देश में सस्ता और प्रभावी इलाज होने के साथ साथ पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए हमने गांव के अस्पतालों से लेकर के मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थानों तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम शुरू किया है। गांवों में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। ये सिर्फ खांसी बुखार के सेंटर नहीं है, बल्कि यहां गंभीर बीमारियों के परीक्षण की सुविधाएं देने का प्रयास है। पहले जिन छोटे छोटे टेस्ट को कराने के लिए शहरों तक पहुंचना पड़ता था, वो टेस्ट अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के संपूर्ण समाधानों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई है। हर जिले में जांच केंद्र, 600 से ज्यादा जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल जैसे अनेक प्रावधान किए गए हैं। आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी हमें इतना परेशान ना करे, इसके लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अभियान को गति दी जा रही है। हर 3 लोकसभा केंद्रों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है। बीते 6 सालों में करीब 180 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले जहां देश में लगभग 55,000 एमबीबीएस सीटें थी, वहीं 6 साल के दौरान इसमें 30,000 से ज्यादा की वृद्धि की जा चुकी है। इसी तरह पीजी सीटें भी जो 30,000 हुआ करती थी, उनमें 24,000 ज्यादा नई सीटें जोड़ी जा चुकी हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न आत्मार्थम नापि कामार्थम अद्भुत दयाम प्रति, अर्थात औषधियों का, चिकित्सा का ये विज्ञान जीव मात्र के प्रति करुणा के लिए है। इसी भाव के साथ आज सरकार की कोशिश ये है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित न रहे।